Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Lecture number 21, BS6 Master in Organic Chemistry. Let's talk about Wade-Mingo's rule or PSEPT or the polyhedral skeletal electron pair theory. This theory, polyskeletal electron pair theory, gives us an electron counting rule to predict the structure of the complex compounds. ये हमें एक ऐसा रूल बताती है जिससे हम किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताते हैं. Like boranes, carbohydrates and the metal complexes are the complex compounds, and their structures can be understood by the electron counting rule or by the polyhedral skeletal electron pair theory. To predict the structure of complex compounds, electrons are counted because the structure of the complex compound is directly related to the number of electrons. Structure of the complex compound is directly proportional or directly related to the number of electrons that is used in the bonding of polyhedral structure, polyhedral complex compounds. There are the two scientists that make this rule. One is the Kevin Wade. Wade relate the number of electrons with the structure of boranes and the carbonates. But the Mingo was a scientist who further extend this rule for the metal complexes. Metal complex के लिए मिंगो ने ये रूल आगे बढ़ाया था मज़ीद. वेड-मिंगो रूल क्या है? वेड-मिंगो रूल for the boranes and the carbonates, which is given by the Wade. This rule states that the number of electrons in the boranes or the carbonates is equal to the total valence electrons minus 2n. T टोटल को जाहिर कर रहा है, V वैलेंस, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को E माइनस एस इलेक्ट्रॉन्स को ये साइन शो कर रही है. ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. अगर हम पेयर की फॉर्म में इसे लेना चाहते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज इक्वल टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस 2 ओवर 2 हो जाएगा. If let's talk about, if we have a compound that has the boron, carbon and hydrogen atoms, then the formula of number of electron pair will become is equal to 3b plus 4c plus hydrogen plus x minus 2n over 2. Carbon has the 4 electrons present in the valence, which is used in the bonding, and the hydrogen has the 1 electron and form the bonds. Here x is the loss or gain of electrons in a complex compound, and n is यहाँ पे जो number of atom है, number of atom central atom हम कह सकते हैं. इसी तरह for the metal complexes, which is given by the metal complexes rule, which is given by the Mingo, which is also called as the Mingo rule, is equal to the number of electrons pairs is equal to the total valence electrons minus 12n over 2 or the 14n plus 2. These are the rules through which we understand the complex structure of the complex compounds, which is formed by the metal or transition metal. Let's take a different examples. Here are the
different structures, different complex compounds. This one, this one, this one. These these complex compounds are written over here, and step by step I will try my best to understand, to describe these structures and the number of electrons relation. Let's take an example. Example number 1. B6 H6 minus 2. Here the central atom is the boron and its atoms is 6. N is equal to 6. We know that it is a borohydride. Number of electron pairs is equal to total valence electrons minus 2 over 2n over 2. यहाँ पे ये फार्मूला है. ये फार्मूला हमने -2 वाला क्यों लगाया? क्योंकि जो बोरेन्स हैं या कार्बोनेट्स हैं, ऐसे जो कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उनके लिए हमारे पास ये फार्मूला था वेड रूल के अंदर, जो हमने देखा था इधर, ये वाला फार्मूला वेड रूल के अंदर आता है. तो इसको हमने फर्दर एक्सटेंड किया हुआ था 3b प्लस 4c प्लस हाइड्रोजन प्लस x माइनस 2n ओवर n. हम कहते थे क्योंकि यहाँ पे कार्बन नहीं है इस कंपाउंड के अंदर, तो यहाँ पे हम कार्बन को शो ही नहीं करवाते. यहाँ पे क्या हो जाएगा 3b प्लस हाइड्रोजन प्लस x माइनस 2n ओवर n हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच बिकम्स इक्वल टू 3 into 6. एक जो बोरोन एटम है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, 6 एटम है तो 3 into 6 प्लस हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे ये 6 हाइड्रोजन है तो 6 हो जाएगा 1 into 6 प्लस 2. हमने क्यों कहा है कि गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट ओवर हेयर. तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं तो प्लस हम 2 कह देंगे. -2 फार्मूला के अंदर है into n is equal to 6, तो यहाँ पे हमने 6 पुट कर दिया ओवर 2 हो जाएगा, which becomes equal to 18 plus 6 plus 2 minus 12 over 2, which becomes equal to 18 plus 6 24 plus 2 26 minus 12 over 2, which becomes equal to 14 over 2, which is equal to 7. We know that we have the n is equal to 6, then the number of electron pairs is equal to n plus 1, which is equal to 6 plus 1, which is equal to 7. क्योंकि यहाँ पे 7 हमारे पास वैल्यू आई है, इसका मतलब है कि n हमारे पास 6 था, n 6 था तो 6 plus 1 is equal to 7 है. जो अगर हम देखें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम एक्सप्लेन पहले करते हैं. As the closest structure, we have the 4 type of structures, which is given over here. When the number of electron pair become equal to n plus 1, then closest structure will be there. If the number of electron pairs become equal to n plus 2, then the nido structure of the complex compound. If the electron pair become equal to n plus 3, then the arachno structure will be there. If the n plus 4 electron pair, then the hypostructure will be there, and the hypostructure is the rare that is present in the complex compounds. Because here n plus 1 is equal to the number of electron pairs that is present in this compound, that's why we said that it has the closed structure. Example number 2, C2
B4H6. This is the complex compound. In this compound, we will count the number of electrons pairs that is present in it, and then we relate the structure. Then we relate them toward the structure of it. Number of electron pairs become equal to 3b plus 4c plus hydrogen plus xo minus 2n over 2. Then the one carbon has the 4 electron in their valence shell, B has the 3 electron, and the hydrogen has the 1 electron. Then we write that यहाँ पे अगर बोरोन को देखें तो 4 बोरोन है, एक बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 4 हम वहाँ पे पुट कर देंगे इसके अंदर, क्योंकि 4 हमारे पास एटम है। 2 कार्बन है यहाँ पे और 4 इलेक्ट्रॉन एक में पाए जाते हैं, 4 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 6 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 6 हो जाएगा, प्लस 0, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, माइनस 2 इंटू 6 हो जाएगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 6 है। इसके अंदर बोरोन और कार्बन को मिला के अगर देखें तो एटम इसके 6 बन रहे हैं, तो 6 इसके सेंट्रल एटम है जो हमारे पास हाइड्राइड बना रहे हैं, ओवर 2 हो जाएगा। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करवाते जाएँ तो हमारे पास 12 प्लस 8 प्लस 6 प्लस माइनस 12 प्लस 8 प्लस 6 माइनस 12 ओवर 2 हो जाएगा, विच बिकम्स इक्वल टू ये 20 प्लस 6 26 माइनस 12 ओवर 2, 14 ओवर 2 इज इक्वल टू 7. Because n is equal to 6, then the structure will be n plus 1, which is 6 plus 1 is equal to 7. Then the structure will be the closed structure. Example number 3, B9H14 minus 1 sign, यहाँ पे minus 1 में क्या है? Here the number of atoms, central atom is equal to n, which is equal to 9. Number of electron pair become 3 into 9. बोरोन, एक बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो 9 बोरोन है, 9 बोरोन है, तो यहाँ पे 3 into 9 प्लस 14 हाइड्रोजन है, तो एक इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 into 14 प्लस 1 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2 into 9, क्योंकि सेंट्रल एटम 9 है तो यहाँ पे 9 हम पुट कर देंगे, ओवर 2 हो जाएगा। ये 9 into 3 27, 14 प्लस 1 माइनस 18 ओवर 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 42 माइनस 18 ओवर 2, विच इज इक्वल टू 24 over 2, which is equal to 12. Here the number of electron pairs is 12. Then the structure will be n plus 3, which is equal to 9, क्योंकि n हमारे पास 9 था, 9 plus 3 is equal to 12. तो यहाँ पे तीसरी हमारे पास जो कंडीशन थी, जब n plus 3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, वहाँ पे arachno structure होता है. Therefore, the structure of the complex compound will be the arachno. Example number 4, यहाँ पे हमारे पास एक complex compound है Fe4 into 13 carbonyl O minus 2 sign. Here the central atom is the iron. Its value is equal to 4. N is equal to 4. Then the electron pair will be total valence electrons minus 12 n over 2. ये मेटल कम्प्लेक्स है, ये बोरेन्स नहीं है, कार्बोनेट्स नहीं है, बल्कि मेटल कम्प्लेक्स है। इसी वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए फार्मूला होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल मेटल एटम आर गिवन बाय द दिस लिगेंड माइनस 12n ओवर 2 हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसे 12n हो जाएगा ओवर 2। तो यहाँ पे एक जो आयरन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 26 है, आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे 4 आयरन है
एक हमारे पास आयरन एटम 8 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 4 इंटू 8 प्लस 13 इंटू 2। कार्बोनाइल जो एक कार्बोनाइल है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ पे 13 कार्बोनाइल हमारे पास लिगेंड लगे हुए हैं, तो 13 इंटू 2 हो जाएगा। प्लस 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं तो प्लस 2 हो जाएगा। माइनस 12 इंटू 4, सेंट्रल एटम जो है हमारे पास है n इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे 4 पुट कर देंगे ओवर 2। ये हमारे पास 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32, 13 इंटू 2 इज इक्वल टू 26 प्लस 2 प्लस 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 48, माइनस 2 इज इक्वल टू 60 माइनस 48 ओवर 2। यहाँ पे 12 ओवर 2 इज इक्वल टू 6 विच इज़ द n प्लस 2। n प्लस 2 जब हमारे पास होगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। जब 4 इंटू 2 यानी कि n प्लस 2 हुआ है हमारे पास, तो दूसरी कंडीशन है ये वाली जिसके अंदर स्ट्रक्चर जब n प्लस 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उसके स्ट्रक्चर जो होता है नीडो स्ट्रक्चर रहता है। तो यहाँ पे नीडो स्ट्रक्चर विल बी देयर फॉर दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, नीडो स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 5, S4 2 पॉजिटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब हमारे पास इस तरह के मेटल होती हैं जो कम्प्लेक्स बना रही होती हैं एक दूसरे के साथ ही आयनिक फेज में, तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है 4n प्लस 2 होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को फाइंड आउट करने के लिए, 4n प्लस 2। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमारे पास इसके हमारे पास प्रेजेंस आएगी, डिफरेंट टाइप की डिफरेंट अमाउंट आएगी, जिसकी वजह से हमारे पास 4 तरह के स्ट्रक्चर आएंगे। 4n प्लस 2 अगर हमारे पास फार्मूला का के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं तो वो क्लोजर स्ट्रक्चर है। 4n प्लस 4 आता है तो नीडो स्ट्रक्चर है। 4n प्लस 6 आता है तो अरेक्नो स्ट्रक्चर है। 4n प्लस 8 है तो हाइपो स्ट्रक्चर है। In this complex compound n is equal to 4, then the 4 into 6 सल्फर हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 6 होते हैं, यानी कि एक सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में लेके जा रहा होता है और बॉन्डिंग बना रहा होता है। तो यहाँ पे 4 सल्फर हैं, 4 into 6 माइनस 2 हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला है जिससे हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसको दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 6 into 4 इज इक्वल टू 24 माइनस 2 इज इक्वल टू 22। 22 कौन से इन चारों में से, ये जो हमारे पास चारों के चारों फार्मूलाज हैं इनमें से कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? तो यहाँ पे देखें 4n प्लस 2 अगर हम पुट करते हैं तो ये फार्मूला सही नहीं होता। अगर 4 into 4 हमारे पास n इज इक्वल टू 4 है, 4 into 4 16, अगर 6 हम जमा करें, 6 इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर हैं वो एक एटम 6 इलेक्ट्रॉन देता था, वो 6 हम पुट करें तो ये 22 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। मतलब क्या कि 4n प्लस 6 हमारे पास इसका हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं। 4 into 6 इसका स्ट्रक्चर कौन सा होगा? अरेक्नो स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अरेक्नो स्ट्रक्चर विल बी देयर। आज तक इतना ही। अल्लाह।